Question number third, fill in the blanks. First part is the number of proper subsets of a given finite set with 4 elements is. देखो साढ़े को फॉर्मूला नवा number of subsets that is 2 power n. The number of proper subsets 2 power n minus 1, where n is the number of elements in a set. देखो इतने साढ़े को number of elements in a set is 4, n is 4 आ गया, या 2 power n, n is 4 minus 1, 2 into 2 into 2 into 2 minus 1 कितना आ गया साढ़े को 16 minus 1 कितना आंसर आ गया 15 आंसर आ गया, आंसर इज 15। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਸਬਸੈਟ ਸਾਡੇ ਬਣਨੇ ਆ 16। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੈਟ ਮੰਨ ਲਓ A B C D ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ A B C D ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ 4 ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਏ 'ਚ। ਸਬਸੈਟ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਐਮਟੀ ਸੈਟ, ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਐਲੀਮੈਂਟ A B, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ A B B C, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਔਨ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ A B N C, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ A B C and D। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਐਮਟੀ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਬਸੈਟ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਗਿਵਨ ਸੈੱਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਆ, 3 ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਟ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਬਸੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਗਿਵਨ ਸੈੱਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ A B C D, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਏ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਬਸੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਬਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 16 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 15, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ। ਦੇਖੋ ਇਨ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ the angle between the hour hand and the minute hand at 2:30 is, मतलब ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਘੜੀ 2:30, देखो साढ़े बन गया थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। देखो ਜਿਹੜਾ ਕੰਜੈਕਟਿਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਸ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਦੇਖੋ 30 30 30, ਠੀਕ ਹੈ, 30 ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣੂਗਾ 30 ਡਿਗਰੀ 30, ਓਕੇ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਡਿਗਰੀ ਇਹ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਆਵਰ ਹੈਂਡ ਐਂਡ ਦਾ ਮਿਨਟ ਹੈਂਡ, ਆਵਰ ਹੈਂਡ ਐਟ 2:30। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ 2:30 ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਸੀ 2 ਦੇ ਪਰ ਲਗਾਉਣੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 2 ਤੇ 3 ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਜਾਊ ਇੱਥੇ, ਦੇਖੋ ਨੋਟ ਕਰੋ 15 ਆਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 30 ਟੋਟਲ 30 ਹੈ, 15 ਆਣਾ। ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸੂਈ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਸੂਈ ਹੋ ਗਈ 2:30 ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਵੱਡੀ ਸੂਈ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ 15 ਇੰਨਾ ਬਣ, ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਟੋਟਲ 30 ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ 15, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ 30 30 30, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇਖੋ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਐਂਗਲ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਦਿਸ ਐਂਗਲ 15 ਹੋ ਗਿਆ, 30 ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ 15 ਫਿਰ 30 ਫਿਰ 30 ਫਿਰ 30, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸਾਡਾ ਐਂਗਲ ਆ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਣਾ ਥੀਟਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 15 ਫਿਰ 30 ਫਿਰ 30 ਫਿਰ 30, ਠੀਕ ਹੈ। छोटी सुई तो बड़ी सुई विचकार एंगल कितना बन गया 105 बन गया +1, ठीक है। आंसर इज
105 डिग्री, राइट, वेरी इजी। नेक्स्ट स्टडी करेगा थर्ड पार्ट, द वैल्यू ऑफ, देखो एटा पावर 13, एटा पावर 14, 15 ਤੇ 16। वैसे इन्हू कला कला सोल्व कर लो, तो यदा ईजी मैथड की है कॉमन कर लिया करो। कॉमन आ रहा है देखो एटा पावर 13, ठीक है, इतने बचा साढ़े को कॉमन कटिया 1 बचा थे, 14 में मतलब 13 मतलब माइनस मतलब करता कि आया एटा बचा साढ़े को कॉमन कर लिया 13 आप कि गया थे, तो एटा स्केयर आना, इतने कि एटा क्यूब आना, ठीक है। इन्हू सोल्व करने की लोड़ ही नहीं वैसे, 1 प्लस एटा स्केयर इज -1, एटा स्केयर इज -1, एटा क्यूब इज माइनस एटा, ठीक है। 1 -1 कट गया कि गया साढ़े को ये आ गया एटा पावर 13, ठीक है, इंटू आ 0 ही बन गया पूरा, आंसर इज 0। सेकंड आंसर आ गया 0 आंसर आ गया, क्लियर है। फोर्थ पार्ट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा प्लस 9 इज, देखो सानू पता है कि इसी करनी वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा प्लस 9, सानू पता है कि sin थीटा इट इज लाई बिटवीन -1 एंड 1, मैक्सिमम वैल्यू इज 1, मिनिमम वैल्यू इज -1। इतने 5 नाल मल्टीप्लाई करना पा, देखो 5 sin थीटा ना, इतना करो मल्टीप्लाई करो 5 नाल, -1 सारे 5 नाल मल्टीप्लाई कर लो, देखो इंटू 5, इतने 5 लगा, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 करता आप सारे 5 नाल मल्टीप्लाई करता आप, अगर -5 sin थीटा 5, ठीक है। देखो इस 9 है वा, इतना करो सारे ना 9 ऐड कर लो, देखो इसे ना +9, सारे 9 ऐड कर लो, +9 +9 +9, ये बन गया साढ़े को 4 आ गया, 5 sin थीटा प्लस 9 एक ना 14 आ गया, ठीक है। हम देखो साढ़े को मिनिमम वैल्यू कितनी है 4, तो मैक्सिमम वैल्यू इज लार्जेस्ट वैल्यू इज 14, ठीक है। आप 5 sin थीटा प्लस 9 दी लार्जेस्ट वैल्यू, देखो दिस इज 14, आंसर इज 14, ठीक है, वेरी इजी, क्लियर है, राइट। फिफ्थ पार्ट, solution of the inequation -8 less than equal to 5x minus 3 less than 7 is, the given equation is -8 less than equal to 5x minus 3 less than 7। देखो असी x पता करना, पहला आप -3 ਨੂੰ खत्म करते हैं, कितना खत्म करेंगे आप by adding 3, adding 3, देखो सारा 3 ऐड कर लो, एडिंग 3 एंड एडिंग 3, प्लस माइनस माइनस हो गया, या क्या -5 आ गया, -3 + 3 कट गया 5x, हाँ 10 आया ना। देखो आप एक्स पता करना वा, तो इनू खत्म करना पैना वा, 5 नू किद्दां खत्म करांगे आप, डिवाइड बाय 5, -5 less than equal to 5x less than 10, सारे 5 डिवाइड कर लो, ठीक है। कटिंग हो रही है, ये कट गया, 1 आ गया थे, 2 आ गया, x आ गया, ठीक है, -1 लेस देन इक्वल टू x 2, ठीक है, -1 थे 2, राइट। देखो -1 इक्वल भी है, मतलब इन्हू डार्क कर दो, सर्कल नू फिल कर लो, इधर देखो लेसन है, इक्वल है नहीं, मतलब इतने होगा अनफिल्ड सर्कल, राइट। साढ़ा आंसर है ना, इन्हों पर लिखांगे
इधरों देखो फिल सर्कल है मतलब क्लोज्ड, -1 क्लोज्ड है इधरों, तो उधरों होगा साढ़े को ओपन। ये आंसर आ गया। आंसर इज -1, इधर क्लोज इंटरवल होगा तो 2 बोलो होगा ओपन इंटरवल। ठीक है, दिस इज द आंसर, सोल्यूशन, राइट। 6th part is number of ways in which 4 people can be seated in a row containing 7 seats। देखो साढ़े को 4 person है तो 7 seats है, 4 person and 7 seats है, right। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन। ठीक है, हुण देखो इन्होंने आप 4 पर्सन 7 सीट पर इन्होंने अरेंज करना वा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पर्सन को कितनी ऑप्शन है साढ़े को, फर्स्ट पर्सन को 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शन। सैकेंड पर्सन कितनी ऑप्शन है, देखो जो देखो पर्सन ने बैठ जाना तो इन्होंने कितने भी बैठ जाए साढ़े को एक सीट फिल हो जानी है। तो नैक्सट पर्सन को कितनी ऑप्शन रहनी है साढ़े को, नंबर ऑफ वेज फॉर द नैक्सट पर्सन इज 6, फेक सीट कट जानी है, फिर 5 वेज फेक सीट कट जानी है, फिर नेक्स्ट जो लास्ट पर्सन है उसको और को रहने साढ़े को नंबर ऑफ वेज दैट इज ओनली 4 वेज फॉर द लास्ट पर्सन। ठीक है, इन मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 42 20 एंड 840, राइट। आंसर इज 840, राइट। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम द हाइपरबोला x² 9 - y² 16 = 1। देखो पहले x² है, इसका मतलब इट इज द हाइपरबोला अलोंग x एक्सिस, राइट। एंड दिस इज द फोकस। ये साढ़े को हो गया लेटर रेक्टम, ये हो गया साढ़े को लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, राइट। एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 2b² a। ठीक है, हम देखो इन्हों आप कंपेयर करेंगे, पहला इचों आप ए तो बी पता करेंगे। देखो पहले वाला ए आएगा, दूजे वाला बी आएगा, राइट। क्वेश्चन इज x² 9 y² 16। इन आप स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑफ हाइपरबोला ना कंपेयर करेंगे, दैट इज x² a²। जब इदा करो चेंज कर लो, पहला x² 3², इदा भी कर सकते आप y² 4²। ठीक है, इन्हें कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑफ द हाइपरबोला, दैट इज साढ़े को x² a² - y² b²। ठीक है, = 1। हम कंपेयर कर देखो, x सामने x आ गया, y सामने y आ गया। नोट करो कि साढ़े को देखो 3² a², ए सामने कितना आ गया, देखो 3 आ गया, तो ए कितना बन गया, देखो 3। तो बी सामने कितना आ गया, देखो बी सामने 4 आ गया, बी कितना आ गया 4, राइट। इसका मतलब साढ़े को लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम इज 2b², मतलब b 4 × 4 हो गया, स्क्वायर है ना। a3 कितना आ गया, देखो 4 × 16 32 बटा 3 कितना आ गया, 32 बटा 3 आ गया आंसर। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला इज 32/3, वेरी इजी। एंड लास्ट इज 8 पार्ट। देखो ऑप्शन ऑफ वेरिएशन, ये साढ़े को नवा स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन फॉर्मूला इज ऑप्शन ऑफ वेरिएशन CB, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन × 100। ठीक है, ये साढ़ा आंसर आ गया बस।
बस फॉर्मूला लिखना पा स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन इनटू 100, ठीक है। दिस इज द 8 पार्ट, राइट, क्लियर है। सेक्शन बी 2 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट cos 7x plus cos 5x upon sin 7x plus sin 5x equal to cot x। लेफ्ट हैंड साइड इज देखो थे पहला मांगे सी डी फॉर्मूला cos 7x cos 5x sin 7x plus sin 5x। देखो साढ़े को देगा दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज सी and this is D। formula for cos C plus cos D is 2 cos C plus D over 2 cos C minus D over 2। this is 2 cos C plus D over 2, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला cos C plus cos D cos C minus D over 2, सेम एज साइन सी प्लस साइन डी इज पहला 2 साइन सी प्लस डी ओवर 2 कोस सी माइनस डी ओवर 2। सी इज ठीक है 7x प्लस 5x अपॉन 2, सी इज 7x माइनस 5x अपॉन 2, ठीक है। 7x हाँ सी देखो हाँ डी, हाँ सी हो गया तो यहाँ डी हो गया, 7x माइनस 5x अपॉन 2, राइट, क्लियर है। ये बन गया साढ़े को, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया कोस 7 5 12 बटा 2 कितना आ गया 6x आ गया, 6x लगा लेने पर सीधे या फिर प्लस कर लो 12x अपॉन 2, ठीक है। 7 5 12 बटा 2, क्लियर है। इतने ना 7 माइनस 5 ना 2 आया ना, वैसे तो आप कट भी सकते हैं, वैसे नेक्स्ट स्टेप कर लेने पर कोई गल नहीं। 7 माइनस 5 कितना आया 2x बटा 2 आ गया। ये देखो साइन 7 5 12 बटा 2 कितना आया, ठीक है, इतने 12 बटा 2, इतने ना 7 माइनस 5 कोस 2x बटा कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। कटिंग और देखो 6 थे 6 कैंसिल, ये बन गया कोस, ठीक है ना, 6x आ गया देखो, कोस x आ गया, साइन कितना आ गया 6x आ गया, तो कोस x आ गया। इन्होंने पहले भी कट सकती, वैसे ये कट गया, कितना लिखा गया कोस 6x पॉइंट कितना आया साइन 6x, ठीक है। एंड कोस ऑफ साइन इज कोट, तो साढ़े को कोट 6x इज इक्वल टू साढ़े को इतने लिखा नहीं कोड x लिखा इतने आऊगा साढ़े को 6x, ठीक है, नोट करने से गल, दिस इज राइट हैंड साइड, क्लियर है। इतने ना 6x ध्यान रखियो, लेकिन कोड ऑफ साइन इज कोड 6x, राइट, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 minus 3 iota, वेर इज द क्वेश्चन, let z is equal to 2 minus 3 iota, its multiplicative inverse it is 1 over z, 1 upon कितना z is 2 minus 3 iota, रैशनल कर लो, 2 minus 3 iota ना साढ़े को 2 plus 3 iota, मैंने प्लस ला देंगे अपन 2 plus 3 iota, राइट, 2 plus 3 iota,
ए माइनस बी ए प्लस बी साढ़े को ना ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ए इज 2 बी इज 3 होता राइट। ये बन गया 2 प्लस 3 होता 2 स्क्वायर 4 आ गया माइनस 9 होता स्क्वायर 2 प्लस 3 होता ये 4 and what iota square is? Iota square is it is -1 right। ये आएगा 2 प्लस 3 होता अपॉन माइनस वन प्लस हो गया प्लस 9 2 प्लस 3 होता अपॉन कितना देखा हो गया 13 4 9 13 हो गया तो सारा आंसर आ गया 2/13 रियल पर लग कर लो 2/13 3.13 एवटा दिस इज आंसर दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2.13 रियल पार्ट प्लस 3.13 इमेजिनरी पार्ट ठीक है दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स राइट। क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन ऑफ 20 साइड्स। देखो इन केस ऑफ पॉलीगन साढ़े को अगर आप नंबर ऑफ डायगोनल्स पता करने हैं तो साढ़े को फॉर्मूला की है दैट इज NC2 माइनस n नंबर ऑफ डायगोनल्स इन केस ऑफ पॉलीगन NC2 माइनस n। देखो अगर आप डायगोनल पता करने हैं तो डायगोनल कितना बनता देखो बाय सिलेक्शन ऑफ 2 पॉइंट्स तो माइनस n क्यों करते हैं आप इस गल आप समझ रहे हैं 20 पॉइंट लगा लो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 पॉइंट्स ठीक है। देखो अगर आप डायगोनल ड्रॉ करना तो बाय सिलेक्शन ऑफ 2 पॉइंट कोई भी 2 पॉइंट आप सेलेक्ट करांगे मान लो कि आप इनू सिलेक्ट कर लिया या फिर इनू सिलेक्ट कर लिया आप ठीक है मीन NC2 साढ़े को 20 पॉइंट्स है मतलब 20C2 हो गया हूँ माइनस n पता क्यों किया आप क्योंकि जो आप इस पॉइंट जोड़ते हैं तो ये डायगोनल नहीं बनूगा ये बनूगी साइड ये बनूगी साढ़े को साइड्स बन गई ठीक है टोटल बन गई 20 साइड्स मतलब जिन्ने पॉइंट्स है उन्नी साइड्स बन गई तो अभी माइनस n कर लिया मीनस माइनस n इज 20 ठीक है NC2 मतलब 20C2 माइनस 20 तो इनू एक्सपैंड करना मैथड कि साढ़े को 20 इंटू 2 इतने 19 2 इंटू 1 माइनस 20 ठीक है इनू एक्सपैंड किया 20 देखे इतने 2 है ना 20 गुना 19 तो 2 गुना 1 शॉर्टकट मैथड है साढ़े को ईजी अभी तक कर सकते हैं कितना देखो कट के आ गया 10 190 माइनस कितना आ गया माइनस 20 कितना आ गया 170 आ गया आंसर ठीक है 170 इज द नंबर ऑफ द डायगोनल्स क्लियर है राइट। क्वेश्चन नंबर 7 in an AP if m times the mth term is equal to n times the nth term then find m plus nth term right what is given the question that is m time the m term is equal to n times the n term it is given m तो सारे AP है m term is a plus m minus 1 into d n and n term is a plus n minus 1 into d right मल्टीप्लाई कर लो m a
इन्हें मल्टीप्लाई कर लो एम स्क्र माइनस, तो पहले एम इंटू एम एम स्क्र, एम इंटू -1 इज -m, डी बार अंदर दी, ठीक है। पहले इन्ना इन्ना मल्टीप्लाई इनू, फिर इनू इन्ना मल्टीप्लाई, यदि एन नू मल्टीप्लाई करेंगे आप ए नाल कितना आया एन ए, फिर इनू मल्टीप्लाई करो ये नाल कितना आया एन स्क्र माइनस एन, देखो एन स्क्र माइनस एन, डी बार अंदर दी, राइट। इतना करो इन इधर ले आओ, इन इधर ले आओ, इधर जीरो रहना, एम ए माइनस कितना आया एन ए, ठीक है। इधर आ गया, देखो दोवां विचों इन तो लेना डी कॉमन आना साढ़े को, ठीक है। भला एक बार इदा लिख लो एम स्क्र माइनस एम इंटू डी, ठीक है। इन उधर ले कितना आया माइनस एन स्क्र माइनस एन इंटू डी, ठीक है। हूँ डी कॉमन कर लेंगे आप, डी इज कॉमन एंड हेयर ए इज कॉमन, ए बार आ गया कितना आया एम माइनस एन, डी कॉमन आ गया, डी कॉमन है, देखो नोट करो एम स्क्र माइनस एम, देखो माइनस एन स्क्र माइनस एन स्क्र माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस एन, डी तो आप बाहर कर लिया, ठीक है। इधर साढ़े को किसी का जीरो, क्योंकि सारे इधर ले आने हैं, इधर ही साढ़े को आएगा जीरो, राइट। हम देखो नोट करो ए इंटू एम माइनस 1, ठीक है, ए इंटू एम माइनस एन प्लस डी एम स्क्र माइनस एन स्क्र, राइट। तो ये देखो कि ये साढ़े को इन लिख लो एम माइनस एम प्लस एन, क्लियर है। देखो एम स्क्र माइनस एन स्क्र इधर लिख लिया मैं, मतलब इनू ये लिख लिया तो इनू ये लिख लिया मैंने प्लस एन, ठीक है, क्लियर है। ए इंटू एम माइनस एन, डी बार है एम स्क्र माइनस एन स्क्र, देखो कि बन गया है ये बन गया ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए प्लस बी तो ए माइनस बी, ठीक है, बन गया एम स्क्र माइनस एन स्क्र इज ए प्लस बी तो ए माइनस बी, ठीक है। ए प्लस बी तो ए माइनस बी, तो माइनस से कॉमन कर लो कितना आया, ये माइनस कॉमन कर दिया आप कितना आया, देखो थे माइनस इज कॉमन, इतने ना देखो एम प्लस का आना तो ये माइनस कॉमन दिया एम प्लस का तो एन माइनस का आना, ठीक है, तो जीरो आना, राइट, क्लियर है। इन्होंने लिखा आप ए प्लस बी ए माइनस बी, इस माइनस कटेगा बाहर तो एम माइनस एन आ गया, ठीक है, क्योंकि एम प्लस का एन माइनस का आना। हम देखो ए इंटू एम माइनस एन डी, देखो तुम्हारी कॉमन किया है, कॉमन आया साढ़े को एम माइनस एन, वो बाहर कर लो एम माइनस एन, बाहर कर लिया इतने एम प्लस एन बचे साढ़े को, एम प्लस एन इतने कुछ भी नहीं बचा, इतने बचा 1, ठीक है, इसको जीरो आ गया। हम इतना करो इन्हें चो एम माइनस एन बाहर कर लिया, ठीक है, एच ओ तो एच ओ, देखो चाहे साढ़े को ए आ गया तो, ठीक है, या तो बाहर आ गया साढ़े को बाहर आ गया, ठीक है, ये भी बाहर आ गया, इतों ए बचा तो इतों बचा डी, ब्रैकेट की बचा एम प्लस एन माइनस 1, ठीक है, जीरो। देखो साढ़े को ये भी देखो इनू जीरो कर दो, या तो एम माइनस एन इक्वल जीरो होगा या फिर इनू जीरो कर लो, ठीक है, ए प्लस डी एम प्लस एन माइनस 1 इंटू
मतलब ये 0 हो गया, ठीक है। आइदर दिस इक्वल टू 0, आइदर दिस इक्वल टू 0, ठीक है। बट m इज़ नॉट इक्वल टू n, ठीक है। ये 0 नहीं बन सकता, क्योंकि अगर m तो n इक्वल होने तो ये कट के 0 बनेगा। हम देखो ये 0 नहीं बन सकता, ठीक है। इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं बन सकता, क्योंकि m इज़ नॉट इक्वल टू n सानू मैंशन नहीं है ना। दोवां दा प्रोडक्ट 0 करांदा वा, जो इन दोवां विच एक 0 होवे, आला 0 है नहीं गा, मतलब इनू 0 होना पैना वा, ये 0 है साढ़े को, ठीक है। आला 0 है नहीं साढ़े को, दिस नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। दिस नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये 0 हो गया साढ़े को, राइट। इन नोट करो, इन करने पा m प्लस n टर्म, ठीक है। इस गल नोट करो तुम कि दिस इज m प्लस n टर्म, यानी उधर लिखो एक बारी a प्लस m प्लस n माने 1 इंटू डी, ठीक है। एंड दिस इक्वल टू m प्लस n टर्म, 0 हो गया, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपको कहा जाए कि हाँ भी m टर्म कटो कितना होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये तुम पता वा, ठीक है। अगर n टर्म कही है सानू a प्लस इतने m इतने n आना, ठीक है। जो सू कहा जाए कि m प्लस n टर्म पता करो, बनूगा जिथे n उत्थे आएगा m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। मतलब यदा नाम की है m प्लस n टर्म, यदा नाम की है m प्लस n टर्म, ए इक्वल टू 0 है, तो आंसर इज 0, m प्लस n टर्म इज 0, ठीक है, राइट, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8, ए डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। देखो पहले आप बनावांगे सैंपल स्पेस, जो आप डाई नूं सुट्टांगे तो डाई पर की आ सकता वा, या तो 1 आ सकता वा, या 2 3 4 5 ते या फिर 6 आ सकता, ठीक है। सैंपल स्पेस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। फर्स्ट पार्ट इज a prime number will appear, prime number is टू, ਜਿਹੜੇ नंबर अपने अपने आप डिवाइड होंगे 2 3 ਤੇ 5, या तो अपने आप डिवाइड होंगे या फिर एक ਨਾਲ डिवाइड होंगे, ठीक है। प्राइम नंबर्स देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर इज कितने प्राइम नंबर देखो 1 2 3, ऊपर आ गया फेवरेबल आउटकम्स, इन द डिनोमिनेटर टोटल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6, राइट। एक ना गया कट के 1/2, राइट। सेकेंड पार्ट इज ए नंबर ग्रेटर देन 3, नंबर ग्रेटर देन 3 देखो 3 तो नंबर जोड़े वधे गए वो कि 3 तो बाद 4 5 6, 4 5 ते 6, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 3 भी लिख सकते हैं आप, नंबर ग्रेटर देन 3 फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं देखो 1 2 3, जो नंबर 3 नाल ज़्यादा कितने हैं 3 नंबर ही है, 4 5 6 बटा टोटल 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम्स 6। कटिंग कर लो 3 1 का 3 2 का, आंसर इज सेम 1/2, ठीक है। ये 1/2, ये भी कितना आ गया 1/2 आंसर आ गया। वेरी इजी क्वेश्चन, राइट।